All right, so the recording has started, and welcome back after your holidays. We should resume. Let me just open participants also. If there is any that I would like to uh, bring into the call. Anyways, so as you all know, that this is the start of the new term, and this is the make or break point, which means we need to quickly finish our syllabus and begin the past paper practice full on by timing ourselves and by identifying our weak areas and so on. ठीक है? अब आप में से सिर्फ कोई दो तीन लोग ही हो. Well, there are more people coming. So I don't really think most people enjoy the fact that मैं सारों के सामने सारों के grades बता दूं आपको. Some people don't like that. So I think let the school handle the surprise of announcing your results, and I should just continue with what I'm doing. ठीक है? So the first thing, as always, whenever we have some sort of a major exam, there's no point of having any exam unless we reflect on the things that we did and try to avoid all the mistakes that we made also. So after this lesson, since up term to shuru ho gaya, there's no point in hiding anything. I will publish all of your maths assessments on assess prep. That's how you can see each and every question. मैंने उसे कैसे मार्क किया है, कितने मार्क्स आपको दिए हैं, और जहां मैंने काटे हैं आई ट्राइड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में आपको बताऊं कि क्यों मैंने काटे एंड सो ऑन, so that it can help you off. Although time इसमें बहुत लगा था, but I had to do that. And secondly, I'll also post the solution by, I think, tonight, so you can have a look at that also and try to learn from it and correct your mistakes and so on. So as I go on this revision of, or review, I should say, or reflection of the December exam, I should also want to um show you guys that no part of this exam was a surprise or should have been a surprise for you. That is why I have all the files ready and open for you कि किसी भी सवाल में कोई भी अगर एतराज, as I call it, आया, तो I have proof that when I say कि ये हमने किया किया हुआ था, कहाँ किया हुआ था और किस वक्त किया था, किस फाइल में था, I have like everything over here ready for you guys. ठीक है? So the first thing that I would want to do over here is maybe open Word, and basically I'm just gonna open this file over here. So ये आपका December exam था, as you can see clearly, and let's begin. मैं पहले चेक कर लूँ कोई और participant तो नहीं है. If I am missing anyone, okay, so एक तो चला गया. Anyways, so let's begin. ये हमारा दिसंबर एग्जाम था. यू नो द ड्रिल. 2 hours, 4 क्राइटेरियाज. थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा पहले से दिया हुआ था, बट यू मेड नो यूज ऑफ दैट सैडली. पहला सवाल आपका था अबाउट वॉल्यूम. ठीक है? एंड इट्स अ वॉल्यूम ऑब्वियसली ऑफ अ 3D शेप दैट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स जॉइंड टुगेदर टू मेक एन ऑफिस बिल्डिंग. अब आपको पता है कि यू आर अलाउड टू डिवाइड योर शेप इनटू small shapes so that you can easily calculate the volume of each shape separately and then add them. Now, there are multiple ways in which I can divide this. I can divide it like this, as I've shown you on the screen, this cuboid and this really narrow patla sa cuboid. And I can even do this question without dividing anything. मैं वैसे भी कर सकता हूँ. So the marking key has a lot of methods over here: method 1, method 2, method 3, and so on. But I've just divided it into two parts, calculated the volume separately, and then added them. Most of you got this correct, so I was satisfied by your performance in it overall. That's good. ओके. और अगर मैं जल्दी से आपको दिखा दूं कि इस सवाल की प्रैक्टिस हमने कहाँ की हुई थी, आई हैव टू स्क्रॉल डाउन. एंड पे जहां ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात है, चेक करो. ऑलमोस्ट लाइक इफ नॉट 100%, 95% द सेम शेप, और मैंने आपको उसका वॉल्यूम निकलवाया हुआ है. देर आर मल्टीपल मेथड्स. मैंने यहाँ हिंट भी दी थी. आप इस शेप को डिवाइड कर सकते हो इनटू मल्टीपल क्यूबॉइड्स, finding their volumes and separately add them. But I chose the technical method, or I should say the easier method, prism का concept, which does not require any division of any shape. मैंने उसका formula भी लिखा, उसकी theory भी लिखी, और उसे apply करना भी सिखाया. Over here I can zoom into this so that you guys can clearly see what I'm talking about. ठीक है? So
ये आपकी वही वर्कशीट फॉर प्रिपरेशन है जिसकी सोल्यूशन 80 पेजेस की थी. So you had all the material with you. The second thing was your part number two, which was finding the mean. ठीक है. Mean कैसे निकालते हैं? Add all the values, which is sum divided by the number of values that you had. So add all the values and divided by 5. There were a few students who did a division by 7 और उन्होंने comments में लिखा हुआ था there are 7 days in a week. तो हम 7 से divide कर रहे हैं. यार, who told you that? You simply divide by the number of numbers that you have over here. I only see 5 numbers over here, so divided by 5. That's it. Who told you to divide by a 7? तो खुद से math आप लोग create कर रहे हो, which will land you to the wrong answer. 80 was the right answer. The next question, the next part, merely like barely tested your skill of plugging in, plug and play जिसको हम कहते हैं. So if I see a creepy formula जो मैंने आज तक कभी पहले नहीं देखा, I'll ask myself the following. How many alphabets do I see in it? P, V, N. Do I know their definitions? Yes, मुझे उनका पता है कि what do they mean and what are they. ठीक है. What do I need to find? I need to find P. P निकालने के लिए I need to know the values of V and N. Do I know the values of V and N? Yes. जो V का आंसर है that is your answer from part 1. जो N का आंसर है that is your answer from part 2. Simply plug in. That's it. मैंने दोनों आंसर्स आपकी हेल्प के लिए यहां भी लिख दिए हैं. और ये जो ब्रैकेट में मैंने हिंट लिखा है माइंडेड, ये एग्जाम में हिंट नहीं दी हुई थी, ये मैंने आपको दी थी जस्ट टू गाइड यू. ठीक है. Majority of you got this correct answer, so I really have no issues with this. But there was some champions who did this incorrect as well, so they need to wake up. Anyways, let's move on to the next question. My favorite question. ऐसा क्वेश्चन जब मैंने ये टॉपिक आपको दिखाया था तो मैंने पहले दिन से कहा था कि ये सवाल मैं आपको एग्जाम में दूंगा, एंड आई लिव्ड अप टू माय प्रॉमिस. और मैंने आपको बिल्कुल उसी तरह का सवाल दिया जो कि आपको तैयारी भी जिसकी कराई गई हुई थी. ये देखो, इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शंस. पहला फंक्शन आपका स्क्वायर ब्रैकेट यानी वर्टेक्स फॉर्म में है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी होती है, एंड द सेकंड इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ओके. और यहां चेक कर लो, the first function is like a straight line, y equals to 2x plus 4, and the second is in the vertex form. आपको बिल्कुल उसी तरह की डायग्राम दी है जैसे मैंने आपको क्लास में ड्रॉ कराई थी, एंड सो ऑन. एंड बेसिकली आई इवन हेल्प यू फर्दर. आई डिड नॉट स्टॉप. मैंने कहा कि यार, इस सवाल के अंदर the main thing is, if I go back to the PDF, the main thing is that when you're finding the intersection of functions by doing this, equating both functions, you need to make sure that you open the brackets carefully, you move things left and right carefully so that you end up with the right checkpoint, as I call it, the right equation to solve. Now, in order to eradicate that confusion कि क्या मेरे students सही checkpoint पे पहुंच जाएंगे, I made it into a show that question. What's the beauty of a show that question? The beauty is you already know the answer. You just need to show me the working in order to get to it. So I just wanted to see the working. I know that this is the answer. Now, suppose कोई बंदा ये शो नहीं कर सका कि this is the answer when I equate both functions. या कोई बंदा इस आंसर तक पहुंच ही नहीं सका, उसे नहीं आ रही समझ के मैं क्या करूं. At least when you arrive at this checkpoint, you have the equation that you're gonna solve and get the right answers. अगर यही equation आपकी गलत होती, if this was not a show that question, आपको पता ही ना होता कि आपकी equation क्या है जहां तक आपने पहुंचना है. So आधे लोग तो वैसे ही गलत equation पे पहुंचते, गलत equation को solve करते, गलत x coordinates आते, फिर उन्हें plug in करते, गलत y coordinates आते, the whole question would have been wrong. So the show that question actually saved you in all of that respect. और अगर फर्ज करो आपसे ये show that नहीं भी हुआ, you are still eligible to use this equation, solve it using midterm breaking or quadratic formula, and move on by finding the x coordinates. And that's it. ठीक है. So that is how I helped you in disguise. ठीक है. So मैंने सबसे पहले equating both functions किया, उन्हें लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, मूविंग थिंग्स लेफ्ट एंड राइट हेयर एंड देयर, और फिर आंसर निकाल दिया. दैट्स इट. एंड द मार्किंग की मैं मैं जब ये सोल्यूशन अपलोड करूंगा मैं बार बार आपको मार्किंग की के स्निपेट्स दिखाऊंगा, टेलिंग यू कि जो मेरी मार्किंग है इट्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट विद द मार्किंग की. आपको ये पढ़नी आनी चाहिए. I think it's high time that you guys get comfortable by reading this German or French जो भी आपने कहना है, and you need to know कि एग्जामिनर किस चीज पे आपको नंबर देता है.
because you need to be able to identify that. Don't leave everything in the hands of the teachers कि यार टीचर कर ही लेंगे. Honestly, if I tell you my own stories, O levels या A levels की, ये जो खास तौर पे आखिरी 3-4 महीने थे, when we used to practice past paper ourselves by timing ourselves, we also used to check them ourselves on our own. और अगर कोई एक आधा सवाल हमें समझ नहीं आया मार्किंग की से भी, फिर हम टीचर को कॉल कॉल लगा के या कुछ करके पूछे थे कि सर बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सिर्फ ये एक सवाल है पूरे एग्जाम में, आप प्लीज इसे बता दें कि ये कहना क्या चाह रहा है. दैट्स इट. सो इट वाजंट व्हाट यू गाइस डू के सर स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन से समझ ही नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होता था. इट वाज डायरेक्टेड क्वेश्चनिंग कि सर मुझे ये समझ आ गया, सिर्फ ये जो आखिरी पार्ट है जिसमें ये पूछ रहा है व्हाट इज ही ट्राइंग टू आस्क, द मार्किंग की सेज दिस वेयर एज माय अंडरस्टैंडिंग सेज दिस, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. दैट्स व्हाट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चनिंग. एंड दैट इज what makes a teacher realize कि student को content भी आता है and he made effort in trying to solve the exam, and it's a genuine confusion that he is facing. So I think it's time that you guys think about getting to that level and moving forward. Anyways, so as we showed the working to reach our checkpoint, फिर हमने इसे करना solve. Now you have two options. Deliberately this was given as a really simple equation जो आप मिड टर्म ब्रेकिंग से भी इजीली सॉल्व कर सकते हो. आप मिड टर्म ब्रेकिंग का एक जो डायरेक्ट मेथड है स्टेप स्किप करने वाला वो भी कर सकते हो, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. आई हैव शोन बेसिकली एवरीथिंग इन दिस सोल्यूशन फाइल एज यू कैन क्लियरली सी. ये हमारा है दोनों आंसर्स हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है. एंड बेसिकली फिर मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग भी दिखाया हुआ है. आई एंड अप विद द सेम आंसर्स एंड दैट्स इट. ठीक है. सो ये मेथड्स मैं आपको दिखा दूंगा बाद में एज आई शेयर दिस फाइल. आई डोंट थिंक आई शुड वेस्ट टाइम ऑन ओवर हियर ऑन दिस. जब आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक सेकंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, प्लीज 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 जब भी आपको कोई डायग्राम दी हो या कोई क्वेश्चन की पूरी सिचुएशन बना के दी हो, नेवर सॉल्व योर क्वेश्चंस ब्लाइंडली. गौर से देखो मेरे एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. माय एक्स कोऑर्डिनेट्स आर 5 एंड -1. जरा अपने ऊपर डायग्राम पे जाके देखो, डू दीज मेक सेंस. एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक -1 है और एक 5 है. यू कैन क्लियरली सी के 5 बहुत राइट साइड पे जरा ज्यादा है और -1 मेरे ओरिजिन के बहुत करीब है, एज इट शुड बी. सो दिस ऑल्सो मेक सेंस. कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके एक्स कोऑर्डिनेट्स लेट से 5 और 1 आया. कांट दे सी के एक्स कोऑर्डिनेट आपका एक नेगेटिव होना चाहिए, छोटी नेगेटिव वैल्यू, और एक जरा बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. वहीं से आपके जहन में एक एक थॉट आनी चाहिए थी कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो प्लीज इन योर एक्चुअल एग्जाम्स एंड इन योर एग्जाम्स दैट आर टू फॉलो, ब्लाइंडली या सवाल को डिस्कनेक्ट करके सॉल्व नहीं करते. एवरीथिंग नीड्स टू मेक सेंस. अब फर्ज करो आई मेड सेंस अबाउट द एक्स कोऑर्डिनेट्स, राइट. मुझे पता है कि बोथ ऑफ माय वाई कोऑर्डिनेट्स नीड टू बी पॉजिटिव बिकॉज दिस इज ऑल्सो अबव द वाई x axis, this is also above the x axis, but one of them needs to be a small positive value, the other needs to be a very very high positive value, let's say 10 से ऊपर, और ये बहुत जीरो के करीब होगी, let's say 4-5 के करीब होगी. ओके. So let's see. मैं जरा अपने y coordinates निकाल लूं. कैसे निकालूंगा? When I have both of the x coordinates, I need to find the y coordinates of the points of intersection by putting these x coordinates into f of x or g of x. I generally select the simpler function जिसमें मैं mentally भी plug in करके आंसर निकाल सकूं, so that I don't need to do any complex math on the calculator. Okay. So अगर आपको f bracket x तंग कर रहा है, आप इसकी जगह y भी लिख सकते हो. ओके. सो आपका पहला एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट आया 14 और दूसरा आया 2. ओके. लेट्स सी वेदर दिस मेक सेंस और नॉट. पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1, 2, दूसरा है 5, 14. अगर आपने अपने आंसर्स को ऐसे ना लिखा, आपके नंबर कट जाएंगे. ये मैं आपको रिवीजन वर्कशीट के अंदर भी बता चुका हूं, एंड यू कैन क्लियरली सी कि मैंने भी उसमें ऐसे ही आंसर्स लिखे हुए हैं, ये देखो. ठीक है. सेम मेथड रिवीजन वर्कशीट में हर चीज थी, क्लास में भी थी, इसके हमारे वीडियो ऑनलाइन लेसन्स भी हुए थे, उनके अंदर भी ये सारा कुछ था. सो नो वन कैन एक्चुअली कंप्लेन कि सर ये तो पता नहीं क्या आ गया था, मैं तो जिंदगी में पहली दफा ये कर रहा था. नो कंप्लेंट्स अप टिल येट. वी आर ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. ओके. तो अब इसे जरा एनालाइज करो. -1, 2, 5, 14.
राइट। -1, 2, 5, 14. Everything needs to make sense. There is no contradiction that can ever happen in a math exam. कभी भी नहीं हो सकती। आपकी नॉलेज आपकी प्रेप में कमी हो सकती है, मैथ एग्जाम में कोई मसला नहीं हो सकता। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, ये फॉर नहीं होना चाहिए। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स फॉर दिस। ये मेरे ख्याल से मैंने जब सवाल कॉपी पेस्ट किया तो जरा टाइपो हुआ। सो व्हेन योर इक्वेशन इज इन द वर्टेक्स फॉर्म, आपको 3 फॉर्म्स की मैंने रिवीजन कराई थी क्लास के अंदर भी और इस रिवीजन वर्कशीट के अंदर भी। फुली डिटेल्ड रिवीजन आपको कराई हुई है। इफ यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर क्वाड्रेटिक्स, हर किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये सब चीजें आपको क्लास में निकालनी, रिवाइज भी कराई थी, हम MYP4 से कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। देन यू हैव द इंटरसेप्ट फॉर्म, देन यू हैव द वर्टेक्स फॉर्म। ठीक है, सो वर्टेक्स फॉर्म को हम वर्टेक्स क्या कहते हैं? वी कैन फाइंड द वर्टेक्स जस्ट बाय लुकिंग, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, दिस शुड बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। इसका आपने साइन भी रिवर्स करना है। सो वही काम आपने यहां करना था। जस्ट लुक एट दिस, इज अ -1, इसे 1 कर दो, दिस इज अ -2 की, लेट इट रिमेन एज अ -2, दैट्स इट। स्टेट का सवाल और 1 मार्क का सवाल, व्हाई द हेल वुड आई डिमांड लॉन्ग वर्किंग स्टेप्स फ्रॉम यू? नो, जस्ट लुक एन आंसर। ठीक है, इसी तरह axis of symmetry की equation बताओ। You should know that the x coordinate of the vertex is equal to the axis of symmetry. What is your x coordinate of the vertex? 1. So just write your answer as x equals to 1. मैंने उन लोगों का ये नंबर काट लिया है जिन्होंने खाली 1 आंसर किया था। It's an equation. Equation को हमें हमेशा x equals to 1 लिखते हैं। Meaning in your answer I should be able to see the equal to sign. और equal to sign का मतलब है there should be something on the right and something on the left of it. Right? Once again, general knowledge cannot uh, do anything to blow off these marks. ये देखो मैंने आपको प्रैक्टिस में भी ऑर्डर भी इवन सेम फॉलो किया हुआ है, पहले वर्टेक्स फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स जस्ट बाय लुकिंग भी लिखा हुआ था कि बस देखो और आंसर करो, बट पीपल हैड टू डिसअपॉइंट एज ऑलवेज एंड दे डिड। ठीक है, आगे वाई इंटरसेप्ट, वर्टेक्स फॉर्म हो चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म हो, 3-4 चीजें मैंने आपको सबके लिए निकालना सिखाई हुई हैं। सो देयर वाज नो मसला इन दिस। वैसे भी वाई इंटरसेप्ट किसी भी कर्व का जब भी हमने निकालना हो, वी सिंपली पुट x इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड y। अगर आपको जी ब्रैकेट x तंग कर रहा है, मैं 1000 दफा बता चुका हूं, आप उसकी जगह y लिख सकते हो। x को 0 पुट करो, y निकाल लो, दैट्स इट। माय आंसर इज अ -1। देयर इज नो नीड टू प्लेस एन इक्वल टू साइन और डू एनीथिंग ओवर हियर। प्लस यहाँ कोऑर्डिनेट्स का वर्ड भी नहीं लिखा हुआ था, सो आई डोंट रियली वांट यू टू राइट द आंसर एज 0, -1। आई नो दैट दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स इट। सो अभी तक एवरीथिंग दैट इज थ्रोन एट यू, लाइक आई थिंक कोई 20 odd मार्क्स आपके सीन हो गए। ठीक है, एवरीथिंग वॉज प्रैक्टिस्ड फॉर इन डिटेल। सो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि सर मेरे से नहीं हुआ। यू नीड टू गो बैक एंड revisit how did you spend your life throughout November and December. ठीक है, and I'm not gonna do that, that's for you to think about. Next up, हमारे पास एक सवाल आता है, where a manufacturer makes shoes to sell internationally and he makes shoes in Egypt and Brazil. ठीक है, you have two box and whisker plots और आपको कंपेयर का सवाल आया फिर से। once again कंपेयर का सवाल इन अ बॉक्स एंड whisker plot, and I have to show you कि ये मैंने आपको आपका जो एक स्टैटिस्टिक्स का समेटिव हुआ था तब भी सवाल आया था, उससे पहले प्रैक्टिस वर्कशीट थी तब भी सवाल आया था, और इवन इस 80 पेज वाली वर्कशीट के अंदर जहां स्टैट्स का पोर्शन है, आई डोंट रियली नो, आई थिंक यहाँ आएगा, यहाँ भी मैंने आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का कंपैरिजन का सवाल जान के डाला था। आई कांट रियली फाइंड इट बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग वर्कशीट, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैंने डाला था। आई थिंक आई कैन फाइंड इट जस्ट बाय स्क्रोलिंग डाउन ओवर हियर, या ये आ गया। ओके, और 1000 दफा मैं आपको बता चुका हूं कि जब कंपेयर का सवाल है हम कैसे करते हैं। हमने कंपेयर करना है दो बॉक्स प्लॉट्स को हु लुक लाइक दिस। ओके, दो एस्पेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, एक एवरेज को और एक स्प्रेड को। एवरेज को हम कैसे कंपेयर करते हैं? बाय मीन मीडियन मोड, एंड बॉक्स एंड इसका प्लॉट कैन ओनली टेल अस द मीडियन, मीन और मोड हमें नहीं बता सकता। सिमिलरली स्प्रेड को हम या रेंज से कंपेयर करते हैं या इंटर क्वार्टाइल रेंज से करते हैं, बट आई
always told you that interquartile range is a much better way of looking at the range. तो सबसे पहले आप बताओ कि इजिप्ट का मीडियन क्या है और ब्राजील का मीडियन क्या है, एंड देन राइट अ सेंटेंस कौन बड़ा और कौन छोटा, राइट? But you can't just give a robotic answer. Hence, the median of Brazil is larger than Egypt. Median of what, man? This question is about shoe sizes. So your sentence should be related to the question. ठीक है? So your sentence should have been like, on average, Brazil के अंदर larger shoe sizes sell होते हैं, right? That is what a sentence should be like. सिमिलरली आपने स्प्रेड के बारे में बताना है, सो स्प्रेड के बारे में लेट्स से मैंने इंटर क्वार्टर रेंज को कंपेयर कर रहा हूं, पहले बताओ वो कितनी है, एंड देन राइट अ सेंटेंस व्हिच इज really as per the situation given in the question. Your situation is about shoe sizes which are sold in Brazil or Egypt. So larger spread of shoe sizes are sold in Brazil, whereas you can also be uh, saying this vice versa, which is going to be the smaller spread of shoe sizes are sold in Egypt. ठीक है? So your sentence should make sense. It should not be a robotic sentence जो आप अन्य वहां कहीं भी लिख दो. Okay? So यहाँ भी I was actually disappointed कि बहुत कम लोग थे जिन्होंने ये फॉर्मेट्स फॉलो किया था about answering this, and this is not actually my format, ये marking key का है, so I did not paste the marking key over here, but I've shown you that a lot. Anyways, आगे हमारा एक सिंपल सा ट्री डायग्राम का सवाल आता है. वंस अगेन आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ. मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्री डायग्राम की फिलिंग इन के सवाल भी हमने इस तरह किए हुए हैं. ये देखो, अगर मुझे ये दिया हो तो ये क्या होगा, विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन अबव आई नो दिस इज गोना बी अ 0.4. मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. इफ आई नो दिस इज अ 0.7, आई नो दिस इज गोना बी अ 0.3. यही काम मैंने आपसे यहाँ कराया था. इफ आई नो दिस इज अ 0.6, आई नो दिस इज अ 0.4. इफ आई नो दिस इज अ 0.05, आई नो दिस इज अ 0.95. हाउ हार्ड वाज दैट? और अगर आपका ये गलत हुआ तो आगे निचले सवाल भी गलत होते जाएंगे, होते जाएंगे. सो देयर वर अ फ्यू जीनियस पीपल हु made mistakes in this. ठीक है? So I salute them. Obviously they should really think about what they are doing with their lives right now. Find the probability that a shoe chosen at random from Brazil is not from Egypt is not defective. Okay, इस सवाल में एक मसला था. कुछ लोगों ने इसका 0.9 आंसर दिया because this also represents the shoes from Egypt which are not defective. और इफ यू कंसिडर इट एज अ पाथ के पहले इजिप्ट फिर नॉट डिफेक्टिव, तब भी सही अप्रोच थी. इस सवाल की इंग्लिश में थोड़ा सा मसला था. दैट इज व्हाई आई गिव क्रेडिट टू बोथ अप्रोचेस, और काफी लोगों का ये ठीक था. आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ शू चोजन एट रैंडम फ्रॉम ईदर फैक्ट्री इज डिफेक्टिव. चाहे इजिप्ट हो चाहे ब्राजील हो, आई वांट अ डिफेक्टिव शू. ओके, सो इसके लिए पहले अपने पाथ्स आइडेंटिफाई करो. इजिप्ट डिफेक्टिव, ब्राजील डिफेक्टिव. सो दोनों के आंसर्स निकालो और दोनों को ऐड कर दो. सिंपल. आई हैव डन दैट अ लॉट. मैं आपको दोबारा फाइल से भी दिखा देता हूं. दैट हैज बीन डन over here as well. ये देखो, regardless of where he went, he was able to meet his friend. ये literally उसी तरह का, उसी तरह की wording, उसी तरह का सवाल. इवन यहाँ तो आंसर भी सेम था. So all those people who say कि सर समझ नहीं आई थी ये क्या हो रहा है, you don't follow instructions. सिंपल सी बात. आगे एक और जरा फंक्शन का सवाल है, बट दिस टाइम शिफ्ट्स का सवाल. मूविंग अप, मूविंग डाउन, मूविंग लेफ्ट, मूविंग राइट, गेटिंग थिनर, गेटिंग वाइडर. ठीक है? और इस तरह का सवाल भी आपको यहाँ प्रैक्टिस वर्कशीट में कराया हुआ था. इफ आई स्क्रॉल अप एंड गो टू द क्वाड्रेटिक सेक्शन, यहाँ आपको नजर आएगा कि if you have an equation in the vertex form, you can easily decipher के ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो क्या करता है, जो बाहर नंबर है वो क्या करता है, और अगर यहाँ 1 के अलावा कोई नंबर लिखा हुआ है या इफ आई सी एनी नंबर तो उसका क्या मतलब है. ठीक है? सो एवरीथिंग वाज देयर, बट very less people actually were able to get this right. So आपने y equals to x square से यहाँ पहुंचना है. What did I do to my original curve to land over here? मैंने right move किया by 3 units, मैंने up move किया by 2 units.
मैंने, सो वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। मैंने इवन मार्किंग की भी यहाँ पेस्ट की हुई है फॉर यू गाइज, विच टेल्स यू दैट अगर किसी बंदे ने सिर्फ राइट और अप लिखा और अमाउंट ना बताई, उसके नंबर कट जाएंगे। बिकॉज यहां चेक करो आपको नंबर किस चीज के मिल रहे हैं, वन ट्रांसफॉर्मेशन करेक्टली डिस्क्राइब्ड यानी इंग्लिश में बताया, विद करेक्ट डायरेक्शन एंड वैल्यू। ना सिर्फ ये बताओ कि मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूं, ये भी बताओ मैं ऊपर मूव कर रहा हूं बाय हाउ मच अमाउंट, 2 यूनिट्स, ये सब बताना है। नहीं बताओगे नंबर कट जाएंगे, और मैंने भी काटे हैं। ओके, translation to the right by 3 units. Now please make sure that even आप मार्किंग की में चेक करो, ट्रांसलेट का वर्ड लिखा हुआ है, ट्रांसलेट ट्रांसलेट। लेकिन इस मार्किंग की के अंदर एग्जामिनर जरा अच्छे मूड में था, उसने शिफ्ट का वर्ड या मूवमेंट का वर्ड भी अलाउ कर दिया था। बट आई वुड स्टिल से कि ट्रांसलेशन का वर्ड यूज किया करो व्हेन यू वांट टू डिफाइन सच मूवमेंट्स, अप डाउन लेफ्ट राइट वाली। ओके, सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। This was a simple question of functions. X की जगह 10 plug in कर दो, किया 51 आंसर आया। And this was again a simple question. F bracket X की जगह 11 plug in कर दो, as you do over here. Move the +2 on the other side, it becomes a 9. Take the square root on both sides because I want to remove this square. कुछ लोगों ने यहां भी लंबा तरीका किया, इस स्क्वायर ब्रैकेट को एक्सपैंड किया, मेड इट इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, देन एंडेड अप विद दीस टू आंसर्स। why are you doing a thing which can be done in just 2 steps? आप लोगों ने इतनी ज्यादा वर्किंग करके इतना ज्यादा टाइम जाया किया, आई ऑनेस्टली डोंट नो। लेकिन चलो, अगर आंसर आपका ठीक आ गया, इट वाज वर्थ द एफर्ट। बट ऑनेस्टली इतना टाइम एग्जाम में जाया ना करना तो बेहतर है। यू शुड नो कि जब वर्टेक्स फॉर्म वाला सीन हो, एंड आई नो व्हाट द वैल्यू ओवर हियर इज, मैं आराम से स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यूज कर सकता हूं इन 99% ऑफ द केसेस। एक और इस क्वेश्चन में जरा complexity थी, which was this: you will get two answers but you will need to select one of them based on the domain. अब ये हिंट है, जब भी आपको अपने एग्जाम में इस तरह की चीज नजर आए, इट मींस ये मैंने खुद से हिंट दी है आपको। जब असल एग्जाम में ये सवाल आया था तब कोई ऐसी हिंट नहीं थी। सो अब खुद ही सोच लो कि हाउ द एग्जामिनर एक्चुअली वांट्स यू टू मेक लिंक्स एंड वांट्स यू टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इमेजिन करो ये हिंट ना दी हो इधर, एंड आई एंड अप विद टू वैल्यूज ऑफ एक्स। पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करें और हमारे टू आंसर्स आए, यहाँ वैल्यूज लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वैल्यूज नहीं लिखा हुआ, यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि देयर हैज टू बी अ केस कि मैं दो आंसर्स निकालूंगा, बट वन ऑफ देम नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। ठीक है, और उसका हिंट क्या है? इफ यू रीड योर क्वेश्चन ऑन द टॉप, ये देखो, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स बट ओनली कंसिडर एक्स विच इज ग्रेटर देन 3। यहां एक आंसर आपका 3 से बड़ा है और एक 3 से छोटा है, सो यू नीड टू राइट दैट इन अ सेंटेंस कि क्योंकि मेरी डोमेन x इज ग्रेटर देन 3 है, डोमेन का मतलब x वैल्यूज, दैट इज व्हाई आई रिजेक्ट द आंसर ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड ओनली एक्सेप्ट द आंसर ऑफ x इक्वल्स टू 6। दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज द फैक्ट कि एग्जामिनर ने वैल्यू का वर्ड क्यों लिखा है और वैल्यूज क्यों नहीं लिखा। वरना जितने भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास पेपर में सवाल निकालो, हमेशा वैल्यूज लिखा होता है। और इस तरह का सवाल भी, लाइक ये डोमेन वाला एस्पेक्ट नहीं, लेकिन वैसे इस तरह का सवाल आपकी वर्कशीट में पड़ा हुआ है। आई डोंट हैव टाइम टू शो इट, पहले ही बहुत कम टाइम है, बट जस्ट ट्रस्ट माय वर्ड्स। आगे आपका फेवरेट सवाल आता है फ्लैग वाला, यूनियन जैक। पहले मैं चेक कर लूं कोई पार्टिसिपेंट तो नहीं है। सो यूनियन जैक के अंदर आपको अंदाजा होना चाहिए कि शो दैट, ये जो शो दैट का वर्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ नहीं सके कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना हेल्पफुल होता है एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम में। इसका मतलब ये है कि यू गाइस प्रैक्टिकली नो बिफोर हैंड कि आपका आंसर क्या है। I know that when I calculate the area of this cross, my answer should be 800. अब ये मेरी जीनियसनेस है, if that's a word, कि मैंने ये शो कैसे करना है कि my answer comes out to be 800. Obviously मैंने वर्किंग तो शो करनी है। आंसर तो पहले से आपको पता है। आप एग्जामिनर को कोई फ्रेंच जर्मन लिख के ये नहीं कह सकते hence the answer is 800। थोड़ी सी सही वर्किंग शो करनी है, ठीक है।
So these are a bunch of rectangles that you just want to break up into small rectangles and add them. That's it. अब rectangles का area भी अगर आपको निकालना नहीं आता, then I'm sorry, you need to go back to grade 6. Okay. दूसरी बात ये है कि दोस्त पीपल हु आर सेइंग कि सर ये वाइट बॉर्डर भी एरिया में हमने डालना था या नहीं, तो उन्हें भी सवाल जरा ऐनक लगा के पढ़ने की जरूरत है. द क्रॉस कंसिस्ट्स ऑफ रेड एंड द वाइट बॉर्डर, राइट. तो मुझे अंदाजा था वैसे कि तुम लोगों को क्रॉस क्रूज का तो पता ही होगा ऑब्वियसली, बट थोड़ी सी आंखें खुली रखा करो. एनीवेज, सो मेनी मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. तुम लोग पूरा रेक्टेंगल और दो छोटे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो. जस्ट ब्रेक इट अप एंड ऐड देम एंड गेट योर आंसर. काफी लोगों ने बहुत फ्रेंच और जर्मन लिखी हुई थी, लंबी लंबी अजीबो गरीब सी वर्किंग की हुई थी, टाइम जाया किया हुआ था, लेकिन एंड पे किसी ना किसी तरह 800 तक पहुंच गए थे, तो मैंने क्रेडिट दे दिया था. बट ऑनेस्टली यू गाइज वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन जस्ट कैलकुलेटिंग अ सिंपल एरिया, which was really annoying. इवन एग्जामिनर ने भी 1 2 3 4 5 मेथड्स दिए. मैं तो खुदा के लिए, जब इतना आसान सवाल हो तो गलती नहीं करते. आगे बात, बिलो इज डायग्राम 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा मार्क्ड इन रेड. ये थीटा है, ये रेड में मार्क हुआ है, इसका वैल्यू निकालो. नाउ एंगल्स निकालने का एक ही तरीका है, विच इज ट्रिगोनोमेट्री. और ट्रिगोनोमेट्री के सवाल में आप ये मेरे से पूछोगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, हम तो ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरस अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक राइट एंगल ट्रायंगल ना हो. आप लोग ये समझ ही नहीं सके कि फ्लैग जो होते हैं जनरली वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, और एवरी रेक्टेंगल, एवरी कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ 90 डिग्री. सो डू यू सी दिस ग्रीन शेडिंग ओवर हियर. मैंने अपने जहन में हाइपोथेटिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, बिकॉज आई नो दैट एवरी कॉर्नर ऑफ एवरी रेक्टेंगल इज अ 90 डिग्री. अब मैंने निकालना है एंगल. एंगल निकालने के लिए मुझे दो साइड्स कम से कम चाहिए हैं. आई नो व्हाट दिस साइड इज, इट्स अ 60. आप ऊपर से भी देख सकते हो. आई नो व्हाट दिस साइड इज, इट्स अ 30. दैट इज व्हाई आई विल यूज tan. और ये हिंट जो मैंने दी है ये आपकी हेल्प के लिए दी थी, बट मोस्ट पीपल टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इट एंड दे लेफ्ट दिस क्वेश्चन ब्लैंक. ठीक है. सो tan मैंने यूज किया, ऑपोजिट लिखी, एडजेसेंट लिखा, tan इनवर्स लिया, और फिर मेरा आंसर ये आ गया. डन. Just write your answer to three significant figures, which is one decimal place, and that's it. आगे चलते हैं. Just have 2 minutes left. जल्दी से. Below is diagram 3 now, right? And I'm gonna zoom into the bottom right corner of it, क्योंकि थीटा आपने पिछले सवाल में निकाल लिया. Now your question is find x, right? So when I zoom into this bottom right corner over here, I see this. ठीक है. थीटा मैं पहले से निकाल लिया. It is 26.6 जो भी था ऊपर मेरे. एक्स मैंने निकालना है. वंस अगेन ये एक्स निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, वरना मैं कैसे निकालूंगा. ठीक है. एंड दैट वाज प्रीटी सिंपल. इस तरह का सवाल मैंने आपको क्लास में भी और रिवीजन वर्कशीट में भी जान के डाला था. इफ आई गो टू द सेक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड पाइथागोरस, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का अजीबोगरीब सवाल मैंने क्यों डाला हुआ था. एंड आई विल शो यू द सिमिलैरिटी इन दोस क्वेश्चंस. ओके. एक 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 ये था और एक ये था. सी हाउ सिमिलर दिस कंडीशंस आर. ये देखो, यहां से चलो, दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल एंड देन दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल अगेन. ये देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल 90 ओवर हियर, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. ये देखो थीटा अननोन है, राइट. ये 5 दिया हुआ है. ठीक. यहाँ ऑब्वियसली आपको मसला सिर्फ ये, आप बेशक 90 डिग्री लाइक राइट राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लो. This is x, this is theta, which you already know, it was 26.6 or something. ये क्या है? What is this? ये जो ये लेंथ है. Now इसे निकालने का सिर्फ एक ही था, और मैंने आपको हिंट दी हुई थी. You can find the dotted length by taking help from 6 centimeters. ये पूरा 6 सेंटीमीटर है. आपको आपकी आंखों से नजर आ रहा है कि दिस इज लाइक रियली इक्वली डिवाइडेड. सो ये 3 होगा और ये 3 होगा. सो आपने इस डॉटेड लाइन को 3 ले लिया. ये भी माइंड इट, एग्जाम में ये हिंट आपको नहीं दी हुई थी. सो यू नीड टू मेक श्योर कि एग्जाम में जब ये हिंट्स नहीं दी होंगी तब आपकी हेल्प करने वाला कौन होगा, राइट. एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू सॉल्व